गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमारा वीडियो दिख रहा है कि नहीं और स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? हेलो हर्ष राज। यस मैम। हमारा वीडियो दिख रहा है या नहीं? मैम दिख रहा है। और स्क्रीन दिख रहा है? मैप? यस मैम। मैप भी दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। लेट अस सोनू। ओके, Good afternoon, ma'am. नहीं रहा। ओके, ओके। सो टुडे सक्षम, एक तो बार बार तुम निकल जा रहे हो बेटा, और उसके बाद फिर आ रहे हो तो आवाज हो रही है। Let us start. Today we will discuss about the second chapter of geography, physiographic division of India. ठीक है? Is it clear? We have already studied about India's size and location, and after studying India's size and location, you come to know that India is entirely located in northern hemisphere, northeastern hemisphere, in between 8 degree 4 minute north latitude to 37 degree 6 minute north latitude and 68 degree 7 minute east longitude to 97 degree 25 minute east longitude. Is it clear or not? Do you have any confusion in latitudinal and longitudinal extension of India? No ma'am. Okay, so we have already discussed it, and we know that India is the 7th largest countries of the world, and it is a vast country, and it is not only vast in its size, but in its varied relief feature, in its culture, in its language, in its diversity. India is also vast, diverse countries, vast in terms of population, vast in terms of its culture, which adopted or which have rich cultural heritage, as well as it is diverse in nature. So we have already discussed it, and as in class 9 we will discuss more about India. So after latitudinal and longitudinal extension and size and location, the another part or another portion which is main topic of discussions are physical features of India. We know that in chapter first we have already studied that our country has our country is 7th largest countries of the world, and it has diverse relief feature. It possesses about 3.28 million square kilometer of total area with diverse relief features. Is it or not? India is a country of plain, plateau, mountains. 3.28 million square kilometer of the area is blessed with 3 major and 6 minor physiographic division. Under 3 major physiographic division, as the map indicate, मैप दिख रहा है सबको? स्क्रीन में मैप दिख रहा है? Yes ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो as map indicate that India is blessed with three major physiographic division. This is the Great Wall of North. In other way, we can say that the Himalayan mountain system of India, and next one is
the Great Northern Plain, just below the mountain system of Himalaya, the Great Northern Plain, and then the third major physiographic division is the Great Peninsular Plateau. So in this chapter, we will discuss in detail about the physiographic division of India. And after that, we will discuss that how these physiographic divisions or physical features are formed in India. How Himalayas were formed, how northern plains were formed, how peninsular plateau were formed. India is blessed with 3 major physiographic division and 6 minor. Under 6 minor physiographic division, 3 majors are included: the Great Wall of North, the northern plains and peninsular plateau. Besides this, the Great Indian Deserts, Western Coastal Region or coastal strips कह सकते हो, which include both western and eastern coastal regions, and 2 island group. तो 3 मेजर के अलावा उसी का जो पार्ट है आपका हो जाएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसके बाद कोस्टल स्ट्रिप्स दूसरा, 5वां, और छठा आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया. In Arabian Sea, we are blessed with Lakshadweep island groups, and in Bay of Bengal, we are blessed with Andaman and Nicobar island groups. So all these are the part of India, which is found in almost about 3.28 million square kilometer. This 3.28 million square kilometer of land area is almost 2.4% of the total geographical areas of the earth. On these 3 major physiographic division, we have to satisfy all our needs, okay? And we have to also satisfy our developmental opportunity. So let us begin with the Great Wall of North. And before beginning of, एक और हम आपको मैप शेयर कर देते हैं. ये तो आपका 3 major physiographic division है इंडिया का. The whole of the northern part of India is covered with Great Mountain Wall, in which the major portion is a part of Himalaya, और उसके अलावा जो other mountain system, which एक मिनट, तो मुझे प्यार से गाने बुलाते हो. Who is talking? सिद्धांत कुमार. सिद्धांत कुमार म्यूट करो बेटा. Besides Himalayan mountains, we are having some another mountain ranges also in Great Wall of North, that is Karakoram range, Ladakh range, and Jaskar range. Pir Panjal range and Shivalik is a part of Himalaya. Okay? Himalaya covers the entire northern border of India from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east, Purvanchal in the east, and cover the entire northern portion of India. It is one of the loftiest mountain system of it is the loftiest mountain system of world, which possesses great heights. Yes. 1 minute, please. ठीक है, तो ग्रेट वॉल ऑफ नॉर्थ possesses the loftiest mountain peaks of the world and cover the entire northern portion of India. Yes. Look at the physiographic division. Himalayan mountains, Great Northern Plains,
peninsular plateau, coastal strips, coastal plains which consist of western coastal region and eastern coastal region. Okay. Now let us come to know about how Himalayas were formed. How Himalayas were formed. As we know that before studying about the physiographic division, and when we study about the physiographic division of India, it is we need to know that how these physiographic settings are found in India. क्या आप सब पहले से ही ऐसा था कि हमारा कंट्री एकदम अलग थलग ये 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन से मिलकर बना था, या फिर कुछ कुछ जियोलॉजिकल मूवमेंट हुए हैं? ऐसे आपका सिलेबस में बहुत ज्यादा जियोलॉजिकल मूवमेंट के बारे में बात नहीं की गई है और उसको थोड़ा सा ये किया गया है. बट बिफोर टू नो about the formation of Himalaya, we have to discuss about geological movement. Geological movement, the movement which occurs inside the earth crust, deep inside the earth crust. You know about the structure of the earth. The earth structure is of 3 layers, which consist of the topmost layer, Sial or lithosphere. Below the lithosphere, there is second layer, came to be known as mantle. ठीक है, lithosphere consists of both Sial and Sima. Sial, that means Si denotes for silica and Al denotes for aluminium. In the upper part of lithosphere, the main constituents are silica and aluminium, and that came to be known as Sial. Below it, the lower part of lithosphere consists of Sima, silica and magnesium. Beneath the lithosphere, there is second layer of the earth, second structure of the earth, which came to be known as mantle. Mantle का भी जो मैक्सिमम हिस्सा है वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है ड्यू टू ग्रेटर हीट, और ऐसा माना जाता है कि वो तैरते फ्लोटिंग स्टेज में है. और सबसे डीप इनर पार्ट में जो है आपका इनर कोर अवेलेबल है. ठीक है, कोर में जितना भी रॉक्स एंड मेटल्स हैं ऑल आर इन मोल्टेन स्टेज, क्योंकि एज वी मूव डीप इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज गोइंग टू बी increasing, and due to greater heat the inner core is almost in molten stage, but this behaves like a solid because of excessive pressure over it. तो ये जो 3 layers है उसमें टाइम टू टाइम इरप्शन और कुछ कुछ होता रहता है. गर्मी की वजह से हीट वेव्स राइज करते हैं, कभी लैंड टूटता है, कभी वो इरप्शन जो है दैट रिजल्टेड इनटू कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, कभी कुछ किसी और फॉर्म में. ओके, who is this? Now, before studying about Kumar Kartikesh, open your video please. Kumar Kartikesh. कुमार कार्तिकेश, आवाज सुनाई पड़ रही है तुमको? सब लोगों को आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो बोलो उसको वीडियो ऑन करने. कहाँ गया? ओपन योर वीडियो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू. कुमार कार्तिकेश. कार्तिकेश को आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है ना? यस मैम. क्या है कार्तिकेश, कब से बोल रहे हैं वीडियो ऑन करो? तुम अपना ऑन करो वीडियो. ऑन करो. एक सेकंड मैम, लाइट ऑन कर रहा हूं.
डू यू हैव एनी प्रॉब्लम कार्तिकेश? मैम वो लाइट ऑन कर रहे थे मैम, लाइट लाइट ऑन कर रहे थे और लाइट बंद कर रहे थे और कुछ भी कर रहे थे, क्लास से चले जाओगे, आउट हो जाओगे, समझ गए ना? डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। क्या किया था स्क्रीन पे? क्या मैम? क्या हुआ था स्क्रीन पे? डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। यहाँ मैम वो हाँ, जितने भी आईटी सेक्टर के हैं ना, लाइट ऑन कर रहे थे मैम। इतनी देर से क्यों तुम रिस्पॉन्स नहीं दिया? मैम नहीं आवाज आ रहा था, थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किए अभी। क्यों? कोई भी टाइम है ज्वाइन करने का तुम लोगों का? नो मैम, चार्ज में लगा हुआ था फोन मैम। बी प्रिपेयर्ड बिफोर क्लास। क्लास से Okay, पहले ma'am. अपने आप को प्रिपेयर करो। ओके मैम। और जो भी कुछ तुम लोग जो ये कर रहे हो वो सारा कुछ क्लियर होता है, समझ गए ना? इजिली आइडेंटिफाई, फिर कभी नहीं क्लास करने सकोगे तुम लोग, समझ गया? ज्यादा स्मार्ट बनने का जरूरत नहीं है। ओके मैम। और बहुत ज्यादा हंसी आ रही है तुमको? अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे ना तो नो दिमाग मैम। सही हो जाएगा। नो मैम। बताओ, नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन। विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन? लुक एट मी। कौन है तुम्हारे बगल में जिसको इतना देख रहे हो? या पेरेंट्स है कोई तो नहीं। उनको भी बुलाओ। पेरेंट्स है तो सामने करो। मैम स्कूल में बुक देख पढ़ा रहे रहे हैं। हैं, बुक देख रहे हो मुस्कुरा मुस्कुरा के। आइडेंटिफाई तो तुमको हम एक ही बार में कर लिए। ज्यादा स्मार्टनेस शो नहीं करना, समझ गया? कौन है बगल में? शो मी। कोई नहीं मैम, कोई नहीं है। बताओ, नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, चैप्टर 1। अगर बुक देख रहे हो तो बुक देख कर भी बताओ। टेल मी। मैम उत्तर प्रदेश। वाह, क्या बात है! सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन उत्तर प्रदेश हो गया। इसके पहले डीएवी में ही पढ़े थे या कोई अलग Yes, से ma'am. तुमको गाइड कर रहा है? अलग से कोई ये कर रहे हो, पढ़ रहे हो? लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बताओ, ये तो एकदम सिंपल है। यस श्रीपति, वेरी गुड बेटा, योर आंसर मैम इज याद है। करेक्ट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बताओ। यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जरा आपको मैप दिखाकर बताएं, तो काबिल बन रहे हैं। होश में रहो, क्लास में तो हिम्मत नहीं है और सोच रहे हैं कि तुम ऑनलाइन में कुछ भी कर लेगा। बच्चे हो बेटा, हम बच्चों को बच्चों के जैसा ट्रीट करते हैं, कोई उनको वैसा पनिशमेंट देने का कोशिश नहीं करते हैं जिससे कि उनका नुकसान हो। तो वेल बिहेव्ड बनना भी सीखो, समझ गया? जो कुछ भी एक्शन कर रहे थे, हम अगर कंप्लेन पर आ गए ना तो क्लास में करना मुश्किल होगा। ये बात तुम ध्यान रखो, फिर स्कूल में तो सर भी रोकने वाले नहीं हैं। एंड डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट। बताइए लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। जिनको लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, जिनको सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं आ रहा है, हाँ, जिनको यूपी एक सदर्न मोस्ट यूनियन और यूपी में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ठीक है ना? तो हम लोग अभी देखेंगे हिमालय का फॉर्मेशन और उसका फॉर्मेशन से वीडियो। तुम लोगों को बता दे कि हमारा होल ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ 7 एंड सम माइनर प्लेट्स, ठीक है? 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स से मिलकर बना है। ये 7 मेजर और माइनर प्लेट्स जो है, वंस दे वेर यूनाइटेड, सभी एक साथ जुटा हुआ था, जिसको कि हम लोग पैंजिया के नाम से जानते हैं, ठीक है? वो पैंजिया जो था that is the united part of 7 major and
माइनर प्लेट्स। जब नीचे में ड्यू टू राइज इन हीट वेव्स, these plates were divided into two parts। ठीक है ना, नीचे जो से जो हीट वेव्स आया वो इस प्लेट्स को दो भागों में, जैसे कैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक होता है तो जमीन में दरार पड़ जाता है, टुकड़े हो जाते हैं, इन द सेम वे ड्यू टू राइज इन हीट वेव्स the plates are divided into two parts, one moves towards the north, one drifted towards the north and another drifted towards the south। The northward portions came to be known as what is the name given to the northern part of Pangaea? जो पैंजिया में डिवीजन हुआ वो राइजिंग हीट वेव्स के कारण हुआ, और वो राइजिंग हीट वेव्स के वजह से जो पैंजिया जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो नदर्न पोर्शन ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड केम टू बी नोन एज अंगारा लैंड, and the southern portions which drifted towards the south came to be known as Gondwana land। पूरा अर्थ जो 7 मेजर और सम माइनर प्लेट से मिलकर बना है वो once it was united, पहले सब एक हिस्सा था, पूरा एक साथ जुटा हुआ था, जिसको कि क्या कहते थे, पैंजिया। बाद में ये पैंजिया में आपका दरार पड़ा। कैसे दरार पड़ा? ड्यू टू इंटरनल हीट, नीचे से जो इनर कोर से जो हीट वेव्स राइज किया, पूरा खौलता हुआ सॉलिड फॉर्म में एक्ट कर रहा है, लेकिन वो गर्मी से लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में है। और जहां कभी भी कहीं भी कोई वीक पोर्शन है तो वो इतनी गर्मी, जैसे प्रेशर कुकर में गर्मी लगता है तो सीटी मारता है ना, तो वही कंडीशन एकदम नीचे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से जो हीट वेव्स राइज किया वो तोड़ते हुए जब अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पैंजिया को, एक पार्ट नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ, दूसरा पार्ट साउथवर्ड, और दोनों के बीच में जो गैप, जो डिप्रेशन फॉर्म किया, उसका नाम दिया गया टेथिस सी। जो नॉर्थवर्ड पोर्शन था पैंजिया का, which drifted towards north due to internal heat, that came to be known as Angara land, and southern portion came to be known as Gondwana land, and in between the northern and southern portions lie the depressed area is called Tethys Sea। ठीक है, तो नदर्न पोर्शन जो था अंगारा लैंड, उसमें आज का नॉर्थ अमेरिका, आज का यूरोप, यूरेशिया, ठीक है, ये सारा पोर्शन एक साथ यूनाइटेड था। ठीक है, और जो सदर्न यूरोप, यूरेशिया, आपका नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक जोन, ये सारा एक साथ यूनाइटेड था, जो अंगारा लैंड कहलाया। जो सदर्न पोर्शन था उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका का हाफ से ज्यादा पोर्शन, उसके बाद इंडिया, एशिया का सदर्न पोर्शन और ऑस्ट्रेलिया, ये एक साथ यूनाइटेड था। ठीक है, एक समय आया जब वही नीचे का जो राइजिंग करंट की वजह से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, उसमें क्या हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बताए ना कि सब गोंडवाना लैंड का पार्ट था, एक साथ मिला हुआ था। तो फिर नीचे से जो हीट वेव्स, मतलब दैट विल टेक वेरी लॉन्ग एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नीचे से हीट वेव राइज हुआ तो यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेस जो था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट जो एक दूसरे से जुटा हुआ था, that drifted towards north and collided with much larger Eurasian plate, and due to the collision of Indo-Australian plate with much larger Eurasian plate, under the impact of this collision the sediments of the Tethys Sea, जो बताया था ना कि बीच में एक Tethys Sea था जिसमें सेडिमेंटेशन होता रहा और एक समय आया कि वो पूरा भरने लगा, the sediment of, and due to this collision the sediment of the Tethys Sea will get folded to form the mountain system of Himalaya। तो इस तरीके से हिमालय का आपका फॉर्मेशन हुआ। हमारा हिमालयन माउंटेन जो कि इंडिया का एक मेजर पोर्शन भी कहलाया, बाद में क्या, इंडिया का एक मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है।
ओके, तो अभी तक तुमको किसी को फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में कोई ये है, इसका वीडियो क्लिप हम चाह रहे थे दिखाना, उसको शेयर करना। ये तो आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन है। अभी हिमालय, अबाउट फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का हम वीडियो क्लिप शो करते हैं। ये आप इस तरह का मैप खुद भी बना सकते हैं। सभी को दिख रहा है? यस मैम। ओके, देखो कट कट के दिख रहा है हाँ, मैम, नेटवर्क इश्यू के कारण कट कट के दिख रहा है। ये आपको बताया कि किस तरीके से नीचे का जो आपका अर्थ के अंदर का जो हीट वेव्स है, दैट इज गोइंग टू बी 1, 2, 3. All right. Got to know how to hold it. Like Rolling Marone. You know I feel all right. Feel good. अभी भी दिख रहा है क्या जी? नो मैम। ये आवाज कहाँ से आ रही है? एक मिनट वेट फॉर ए वाइल। कहते हमने बात नहीं, हाजी हम बस बात नहीं, जो पहाड़ बने सिर्फ बातों का, हर बार हुआ तू खोद वही। पकने का टाइम है तेरा, कुछ करने का टाइम नहीं है पकने का। पीछे छोड़ेंगे, सच के आगे दौड़ेंगे, बस फेंक फेंक तू बातों को, हम एक से दुनिया फोड़ेंगे। पेड़ के नीचे मोनोलॉग, बंद करो ये डायलॉग, स्मॉल टॉक, पेप टॉक, फेक टॉक छोड़ के। क्या क्या खुल गया वीडियो और ये मेरे भाई लोग, पेड़ के नीचे मोनोलॉग बंद करे।